Anybody who has taken the test in this, I have evaluated the answer sheets of most of you. I am going to start a discussion of atomic and molecular physics. Normalization factor is 65%. That means for every correct answer I have given you 6.5 marks out of 10. For 10 mark question, I expect an answer of 1 page. A normal UPSC paper is having 18 questions. Normal UPSC question paper is having how many questions? 18 questions. Question 1 is 5 parts. Question 5 is 5 parts. That means 10 questions. And then 3 9. 3 questions, 3 parts each. That means 19 questions. This paper is also having 19 questions. 19-20 questions है कि नहीं? देखिए जी, हैं? पहले बताइए, स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर है, क्यों वेस्ट 3 घंटे का? क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट हैं, बाकी 2 क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं. मैंने 19 पार्ट्स बना दिए हैं इस क्वेश्चन में भी. यूपीएससी के एग्जाम में 19 क्वेश्चंस होते हैं. इवन इन माय पेपर आई हैव मेड 19 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 3 आवर्स. And typically in physics they has to be answered within 25 pages. ये बात और मोटे तौर पर समझ लो. अगर मेरी आंसर शीट 24-25 पेज की है, जानबूझकर मैंने 25 पेज की 30 पेज की आंसर शीट बनाई है, so that all questions and whosoever has got highest marks has not added any extra sheet. Try to understand. Try to understand most important aspect. That when I even have made this answer sheet also contains only 12 to 13 pages. That means 26 pages are there, and according to me, whole of the paper can be written within this space. You need not require any extra sheet. If you are writing extra sheet, that means you are wasting your time and resource. So 250 marks pages paper typically has to be answered within 25 to 30 pages. As an exception up to 30 pages, if you are writing more than that, that means you are writing lot of extra stuff which you are not supposed to write. Okay, so let us get back to how do you find the question paper. बताइए भैया कैसा था पेपर? कठिन था क्या? It was very simple. In fact, it was a simple paper. I consider the paper was simple. किसी को कठिन लगा क्या पेपर? कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसको लग रहा है कि बहुत कठिन क्वेश्चन था, यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता ऐसा? Did anyone have to find the paper like that? Or you feel that any question couldn't have been answered asked in UPSC exam? आप फ्रीली बताइए. अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था या यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता, मैं बता दूंगा कि एवरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड और कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम. दिस वाज वेरी मच अ टिपिकल यूपीएससी काइंड ऑफ पेपर. And because I am giving you a unit test, I couldn't have given you a choice. Right? Understand? If you are preparing atomic and molecular physics and you need to prepare now, once there is only one option, you need to prepare the entire syllabus. And when you need to prepare the entire syllabus, you have to be prepared with all topics. So choice cannot be given on unit test. Choice can be given only when you have been given a full paper. Right? Understand? Choice should be given only when there is a full paper. If there is no full paper on unit papers, you are preparing the whole course. You are preparing the entire atomic and molecular physics. So why should I give you a choice? Choice is uncalled for. Good. That is why deliberately I have avoided giving choice. And then question is straightforward. Now let us come to question number 1. Let us come to question number 1. I will not take much time this time. Last time I took about 3 hours. This time I will get to place by 1.5 hours only. So let me give you question number 1. 1A. Answer is, I am asking
find the relativistic energy shifts of 3s and 3p levels from Bohr's nth level. I am asking only relativistic energy shift. Correct? Try to understand what is the correct answer for this. Relativistic energy shift delta T in centimeter inverse is given by R alpha square Z4 upon N cube 1 upon L plus half minus 3 by 4 N in what units? Already I have written here. If I want to repeat here, this is centimeter inverse. This is relativistic energy shift formula. Go and cross check from the book. Go and cross check from the book. Definitely this formula is to be correct. I will give you 2 marks. Now you do the calculation for 3s and 3p levels. First time I am focusing on the answer, then I will augment the answer. How the answer is to be made better, that I will tell you in due course of time. But what is the answer which will fetch you 5 marks? समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, जो मिनिमम आंसर जो है करेक्ट होना, वो अगर सही है तो मैं आपको 5 नंबर दूंगा. उसके बाद फिर मैं 5 से 6, 6.5 वो सब बताऊंगा. तो एक ये आंसर है. दूसरा इसका है डेल्टा टी फॉर 3s लेवल is equal to 0.378 centimeter inverse. This is your 37.8 meter inverse. This is 4.7 into 10 raised to power minus 5. ये कुछ भी लिख दो. एक आंसर, 2 बात, तीसरी बात. डेल्टा टी 3p is 0.0899 centimeter inverse, 9 meter inverse, 1.11 into 10 raised to power minus 5 eV. ये 3 इसके करेक्ट आंसर है. 2 या 2 1.5 मिनिमम. लिख लीजिए आराम से सबको ये आंसर. अब मैंने बहुत लीनियंट मार्किंग कर दी है. ये ऑर्डर 10 raised to power minus 5 मिली का है. यही होना चाहिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट. अगर आपका 10 raised to power minus 5 भी आ गया है, मैंने आपको 5 दे दिए. ठीक है. आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट का फार्मूला ये है, L प्लस हाफ है. अगर आपने टोटल फार्मूला भी लिख दिया है J प्लस हाफ, उसमें से टोटल फार्मूले में क्या होता है, J प्लस हाफ होता है. मैंने उस पे भी ऑर्डर यही आएगा तुम्हारा. मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना, जो मैंने पूछा है. आई हैव आस्क्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट, व्हिच करेक्ट फार्मूला इज दिस. आई हैव नॉट आस्क्ड द कंप्लीट, लेकिन मैंने भाई साहब दे दिया है. समझ रहे हैं? अगर आपने आज J प्लस हाफ भी लिख दिया है, देन आल्सो आई हैव गिवन यू द मार्क. क्योंकि मैंने 10 raised to power minus 5 का ऑर्डर देखा, इतना लीनियंट रहा हूं मैं. आई हैव गिवन यू 5 मार्क्स आउट ऑफ दिस. बट 1 मार्क आई हैव एक्सपेक्टेड. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट? क्योंकि बोर फार्मूला में एनर्जी P²/2m plus P has to be your relativistic given from that you have written. I have added 1 extra mark. You have told me what do you understand by relativistic energy shift. Why relativistic energy shift has to be incorporated? Why? That is physics. Physics is why part. What is physics? Physics is why part. If you have written why for this, why relativistic shift? Because energy of the electron in the Bohr model was P²/2m, which is non-relativistic, and electron very soon acquires relativistic speeds. Therefore, there has to be correction for the kinetic energy. You may or may not drive the formula. I do not expect you to drive the formula, but this theoretical thing will fetch you 1 extra mark. 6 हो गए.
हाफ मार्क डायग्राम आपने बना दिया ऐसे ऐसे करके जो भी कुछ है समथिंग ऑफ दिस काइंड यू हैव मेड हाफ मार्क फॉर डायग्राम नीट एंड क्लीन वर्क इफ इट इज नीट एंड क्लीन आंसर्स आर करेक्ट यू हैव गिवन मी 2-3 लाइंस अबाउट व्हाट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट या कुछ आधे में इंटरप्रेट में कुछ लिख दिया है कि एनर्जी शिफ्ट इन रेस्ट पावर -5 eV की ऑर्डर की होती है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग I have added half extra mark. I have given 6.5. I have given many people in the class 6.5 on this. Clear? How the evaluation has been done? अगर आपका एक सही है जैसे कि फार्मूला सही लिखा है 2 नंबर दे दिए इनमें से एक भी सही नहीं है तो फिर मेरी कृपा दृष्टि है कि मैंने आपको क्या दिया है फिर कृपा दृष्टि आपने तो अल्फा की तरफ दे दिया है आपने अल्फा नीचे रख रखा है समझ रहे हैं अल्फा ऊपर होता है और इसकी वैल्यू है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स बाई एन क्यूब ये जो पूरा सब है दिस वैल्यू इटसेल्फ इज 5.84 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वहां पर आपको स्ट्रेट वे लाइए राइट दिस 5.84 अपॉन m क्यूब z raised to power 4 दैट्स इट करेक्ट नेक्स्ट पार्ट कपड़ा भैया बात नहीं करता है नेक्स्ट पार्ट What is the angle between total angular momentum vector? क्या होता है total angular momentum vector? J. Good. J. Vector of the and J. L भी total angular momentum vector होता है कि नहीं? L summation L is L1 plus L2 vector है ना? Yes भी होता है कि नहीं? तो JZ तो नहीं पूछा मैंने कि आप मुझे JZ लिख दीजिए MJ H क्रॉस JZ तो नहीं पूछा अगर आपने जेजेड किया तो शुद्ध गलत किया इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं जे और एल के बीच का एंगल जे और एस के बीच का एंगल और 2 निकल गया तो तीसरा निकालने की जरूरत है क्या अगर 2 निकाल दिया तो तीसरे की जरूरत है क्या क्योंकि ट्रायंगल ही तो है ना पहले देखिए सबसे पहले क्या बता रहा हूं पहले मैं 5 नंबर का आंसर बता रहा हूं 51 नंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर then afterwards we will garnish the answer we will make the answer better but first of all let it be clear the people who have not got 5 marks why they have not been given 5 marks means your answer is not correct B part now you know from vector model of an atom the total angular momentum of an atom is a vector sum of orbital angular momentum plus spin angular momentum L plus S form J and L is itself the summation L1 plus L2 so on and so forth ऐसा कुछ L होगा ऐसा कुछ आपका S होगा और दोनों मिला के J हो जाएगा ठीक है हम दो का एंगल कोई भी निकाल लें एंगल बिटवीन J and L एंगल बिटवीन J and S तीसरा तो अपने आप निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा जरूरत ही नहीं है मुझे I don't require समझ में आया भैया I require θ1 and θ2 थर्ड एंगल यू वुड हैव ऑलरेडी कैलकुलेट सो आप मुझे दो को इंडिपेंडेंट निकाल के दिखा दें I am happy I will give you 3 marks any two of them you calculate I will give you the 3 marks एक करेक्ट निकालोगे कितने दूंगा 3 मार्क्स दूंगा थ्योरी अच्छी लिख दी 1 मार्क और दे दूंगा थ्योरी आपने अच्छी लिख दी है I will give you 1 more mark but how I have divided 3 marks for θ1 is cos inverse JL θ2 is cos inverse JS 3 marks half mark for presentation theory समझ में आया इवैल्यूएशन क्लियर हुआ आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ गए टोटल एंगुलर मोमेंटम J है टोटल एंगुलर मोमेंटम L है टोटल एंगुलर मोमेंटम S है और भैया मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर भी खुद से नहीं लिखा कि सर गलत बता रहे हैं सर क्या करते हैं पेपर बनाने के लिए मैंने वो भी गलत बता दिया मैंने क्या करता हूं पेपर बनाने के लिए क्योंकि भाई साहब डिस्प्यूट हो सकता है ना एक से होशियार बैठे हुए आगे बहस करने लग जाए मेरे से मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं कोई किताब 2-3 किताबें देश के डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ाई जाने वाली उठा लेता हूं अब उनमें से क्वेश्चन उतार देता हूं जो देखता हूं कि वर्धमान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है या किसी और सरकारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है या कोई भर्ती दासन यूनिवर्सिटी में 4 बार पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन को उतार के लिख लेता हूं और आंसर लिख लेता हूं समझ रहे हैं जी तो ये आंसर मेरा नहीं है अकेले ये कई सारे विद्वान लोगों का आंसर है जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं जस्टिफिकेशन बता दिया है
ये आंसर भी स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं से उतारा हुआ है मैंने। गुड। सो आई रिक्वायर्ड ओनली टू थिंग्स, थीटा cos इनवर्स JNL, एंगल बिटवीन JNL। कैसे निकालोगे एंगल बिटवीन JNL? स्टैटिक से J और L कैसे निकलेगा आपको? cos थीटा लगा लो, थीटा 1 एक झटके से निकल आएगा आपको, थीटा 1 J L प्लस S, JL निकालना है, J माइनस L, J माइनस L ये स्क्वायर करेंगे, J स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस है, मैं सीधे लिख ही देता हूँ। दो फार्मूले मैंने, अच्छा इसका थीटा 1 था, ये अगर J का बीच का एंगल होता, इसको निकाल लेंगे, J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 L डॉट J S स्क्वायर। तो ये देखो ये आएगा आपको सॉल्व करके थीटा 1 जो आएगा आपका cos इनवर्स J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2J अपॉन 2J, ये आएगा आपका cos इनवर्स J स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन J प्लस 1 रूट L प्लस 1 माइनस S, सब सारा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 50.7685। ये आंसर है, एक आंसर है 50.7685। दूसरा आंसर है थीटा 2 है 78. ये थीटा जो अपने J और S के बीच में रहा है, दैट इज 78.463 एंगल बिटवीन J एंड S। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये कैसे निकाला मैंने, पूरा ऐसे निकाला, ये आ जाएगा J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2, इसको खोल देंगे यहाँ पर 2J का टोटल यहाँ से आ जाएगा आपको, इधर आ गया उधर चला गया, मॉड L मॉड J cos थीटा, तो थीटा आ गया सीधे यहाँ से। दिस इज द स्टेट फार्मूला आई विल गेट फ्रॉम दिस। ऐसे दूसरा फार्मूला बना लेंगे, ये दोनों आंसर हैं। अगर आपके ये दोनों सही हैं, आप गिवन यू 3 मार्क्स, हाफ मार्क फॉर प्रेजेंटेशन, 6.5 मार्क्स। क्लियर? इवैल्यूएशन इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट C part, very straightforward. Give a brief description of the student के लॉग स्टूडेंट 5 मार्क्स। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज, मतलब डायग्राम बनाना है, ओवन बनाना है, माइक्रो ओवन बनाना है आपको, कैलीमीटर कॉलीमीटर बीम बनानी है आपको, देन आपको नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट बनाना है, देन आपको 2 टेस्ट बनाना है और 3 लाइन पे लिखना है। whenever a beam of neutral silver atom will pass through non homogeneous magnetic field, then it gives 2 traces on the photographic plate. क्या इंपॉर्टेंट है? when a beam of neutral silver atom is passed through non homogeneous magnetic field due to action of a force, transverse force, ये फिजिक्स है, due to action of a transverse force it gives 2 broad traces in the photographic plate. करेक्ट, कंप्लीट बता दिया आपको मैंने, 3 लाइन में लिख दिया, डायग्राम बना दिया, 3 नंबर ले लो, 3 मार्क्स आउट ऑफ 5। क्लियर? भाई साहब महाभारत नहीं लिखनी है, बोल्डली इतना टेढ़ा होकर बोल रहा हूं क्योंकि एक ने मुझे पागल कर दिया है। मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप और बेकार की बातें लिखने के लिए ना तो मेरे पास टाइम है, ना IAS के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो। सिर्फ 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, लेकिन डायग्राम बढ़िया चाहिए मुझे 3 चीजें चाहिए कि नॉन बीम हैज टू बी ऑफ न्यूट्रल एटम्स एंड इट हैज टू बी नॉन होमोजेनियस फील्ड। व्हाई? बिकॉज ट्रांसवर्स फोर्स मस्ट एक्ट। बिगनिंग में चाहिए, करेक्ट, 3 नंबर। अब मैंने 5 नंबर में 2 चीजें दी है, 5 मार्क्स 2 पार्ट्स, 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स। आई गिवन यू 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स। 5 नंबर का है, why must the magnetic field be non-homogeneous? If the field is homogeneous, then what will happen? No force will act, because force is mu dot delta B. No force will act. No force will act. As a consequence, I will not get any transverse stress, and that was essential to give you 2 traces. Simplest, force लिखना है, force नहीं लगेगा उसके ऊपर, 1.5 नंबर दिया मैंने, 1.5 marks. 1.5 marks for saying this. Then what kind of pattern should be obtained? 1S0 है भैया, पैटर्न 90% ने गलत लिखा है।
पैटर्न जे के ऊपर होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। जे की वैल्यू कितनी है इसमें? 0। हाउ मेनी लाइंस? जे इज स्प्लिट इनटू 2j plus 1. 2j plus 1 means here what? 1. I will get only 1. That means undeflected beam only I will get only 1. yes नहीं लिखना है यहाँ पर, j is 0, so I will get 2j plus 1. That means only one thing will be obtained. So answer was that whenever a level was with j was there, j is split into 2j plus 1 some levels, and correspondingly I get the pattern. So here j is 0, so there is only one, that is a deflected beam. I will get 1.5. Clear जी? ये लिख दिया है आपने, 3 नंबर वहां दिया, 1.5 नंबर यहाँ दिया आपको। मैंने आपको 6 नंबर दिए। अगर आपने 1.5 पेज लिखा, 6 से ज्यादा दूंगा। 6.5 नंबर देने के लिए ओवरऑल प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड विद इन 1 पेज, ऑल द 3 थिंग्स हैज टू बी रिटेन विद इन 1 पेज, ऑल द थिंग्स हैज टू बी written, and people whom I have given 6.5 marks, they have presented the complete answer within 6.5 within 1 page. Within 1 page, जिसको भी दिया उसको 6.5 दिए। C part is finished. एक अच्छा पेन लो। C part is finished. C part is finished. डिस्कशन हो रहा है भैया, टेस्ट नहीं हो रहा है, डिस्कशन ही हो रहा है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन 1 में हूं, सी कर दिया है, डी में चला गया हूं। क्वेश्चन 1D, कैलकुलेट द ESR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन G is equal to 2. इट इज सिंपलेस्ट, आई थिंक एवरीबॉडी हैज मेड दैट करेक्ट। ये ऐसा है, ये आपको दो ऐसा ESR में ऐसा हो जाता है आपका, ये μB है, ये भी μB है, आपको डेल्टा E हो गया आपका 2 μB। ये किसके बराबर होना चाहिए जी? h न्यू के, न्यू का फार्मूला डाल दो यहाँ पर, सब कुछ मालूम है आपको, सबका करेक्ट है 9.4 गीगाहर्ट्ज। दिस आंसर सबका करेक्ट है। 5.5 6 नंबर दे दिए मैंने, करेक्ट। अब क्या आधा नंबर क्या लिखना? ESR क्या होता है? व्हाट इज ESR? एक लाइन में बताओ व्हाट इज ESR? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? व्हेनेवर इन इलेक्ट्रॉन विद स्पिन हाफ इज केप्ट at this unpaired electron system, unpaired electron system will have spin half or 3/2, those kind of things. So whenever it is kept in a magnetic field, what happens? Torque acts. Due to torque it starts precessing. So it is having a precessional frequency. Whenever that precessional frequency is matched by the frequency of external microwave source, then the maximum absorption of energy takes place. ये 2-3 लाइन में लिखना है, आप 2-3 लाइन में लिखना है। आपने 2-3 लाइन में लिख दिया है, मैंने आपको 6 दे दिए हैं। आधा नंबर के लिए आती है ESR कहाँ होता है, कैसे होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है, पेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। आप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटरमिनेशन। आप ऐसा लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिख देंगे, 6.5 दे दिया, बट नीट एंड क्लीन। दिस एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर 65% मार्क्स, दैट कैलकुलेशन हैज टू बी करेक्ट, it has to be written neat and clean, correct? Otherwise कम नंबर दिए गए। क्वेश्चन नंबर D, क्वेश्चन नंबर E, E पार्ट क्या है? A line in H1 NNR spectra has a width of nu half is 12 Hz. In a magnetic field of 0.3357 Tesla, B 0.3357 Tesla। देखो भैया, इसमें भी मैंने ऐसे मार्किंग करी है। इसका जो टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन जो टाइम है, उसका आंसर है 3.2 नैनो सेकेंड्स। डेफिनेटली ये यूज करना है, डेल्टा E डेल्टा T ऑफ द ऑर्डर ऑफ H और द ऑर्डर ऑफ H क्रॉस, कुछ भी लिख लो इसमें, यूज कर लो। तो H न्यू डेल्टा T हो जाएगा आपको,
that would write all those things. T जो हाफ है, ये जो है 1/5 डेल्टा न्यू हाफ ये आता है. That will be value will be 3.2 nanosecond. किसी ने इसका देखो, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो आपका है h क्रॉस बाई 2. हमने आंसर निकाला h क्रॉस से. तो जिसने भी h क्रॉस बाई, इसमें भी मैं ऑर्डर पे ही गया हूँ. नैनो सेकेंड्स है 10⁻⁹ सेकेंड्स. किसी का आंसर 1.6 नैनो सेकेंड निकाल दिया, किसी ने इसका 6.4 निकाल दिया. I have given marks to everybody. Try to understand. But the book from where I have copied this question, according to them, answer was 3.2 nanoseconds. I didn't calculate. I have given you for this, but definitely I expect you have to define me what is relaxation. If you want to get 6 marks, you have to define me what is relaxation time. What is relaxation time? You have to give me the mechanism. Accordingly, I will evaluate it. Clear जी? किसी को कुछ पूछना है पूछ लो जी. Question number 1. Anybody will need to ask? Anything please to ask. Question number 1. A, B, C, D, E. I have finished. सबको इवैल्यूएशन क्लियर हो गया कितने नंबर का? बोलिए भाई, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलना चाहते ना? वेरी गुड. I have done the evaluation for question number 1. I have told you how I have done the evaluation. And basically it is the question 1 which determines your level of comprehension. आपने कितना समझा है सब्जेक्ट को, वो क्वेश्चन नंबर 1 से डिटरमिन होता है. क्योंकि बाकी सब तो मेहनत का गेम है. हार्ड वर्क किया है, बहुत प्रैक्टिस करी है, तो आपके बाकी क्वेश्चन सही हो जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन 1 में कंप्रहेंशन का भी है पार्ट, कॉन्सेप्चुअल भी रहता है. क्वेश्चन 2, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन 2. ए पार्ट 20 मार्क क्वेश्चन है. It can be easily done in 3 pages. कितना स्पेस चाहिए? 3 pages. 10 marks I have given for first part, 10 marks I have given for the second part. Try to understand this. 10 marks I have assigned for the first part. Derive an expression for Nernst G splitting factor for an atom subjected to weak magnetic field. ऑलरेडी आई हैव सेड वीक मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी वीक है. वीक है मतलब एलएस कपलिंग होल्ड कर रही है. वीक फील्ड है, वीक फील्ड है. दैट मींस एलएस कपलिंग इज ऑटोमेटिकली होल्डिंग गुड. आई हैव आस्क्ड यू टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर Nernst G splitting factor. दिस इज फॉर 10 marks. एंड इफ द डेरिवेशन इज नाइस, आई विल गिव यू 60% ऑफ द मार्क्स. एक्सेप्शनली डन, 1.5 page, I will give you 6.5 marks. And for rest part 10 marks I have given the numerical problem. Numerical problem was E by M. I have asked E by M value will turn out to be ये था, हमने ये यूज किया डेल्टा न्यू EB upon 4 pi MC. ये हमने यूज किया. और डेल्टा न्यू क्या था? डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर था. सी न्यू आपका 1 होता है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा डेल्टा लैम्डा. डेल्टा न्यू इज नथिंग, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर. एंड डेल्टा न्यू इज हाउ मच? EB बाई 4 पाई MC. ये आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं. यू कैन शो मी. एंड व्हेनेवर यू कैलकुलेट E by M, स्ट्रेट फॉरवर्ड इट विल टर्न आउट टू 1.75 into 10 raised to power 11 10 raised to power 11 coulomb per kg. This is the answer I require. If your answer is correct, I have given you 6 marks. But I have checked the calculations. बिना कैलकुलेशन करे हुए किसी ने आंसर रटाया तो आराम से लिख सकते हो. E की वैल्यू आपको याद है, M की वैल्यू आपको याद है, डिवाइड करके लिख दो. कईयों की कैलकुलेशन के जो स्टेप हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं. मैंने 2 नंबर 1 नंबर दिया है या कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि गलत है कॉन्सेप्चुअली.
अगर कॉन्सेप्चुअली मुझे फीलिंग आ गई कॉन्सेप्चुअली आपने गलत किया है तो मैंने करेक्ट आंसर पे भी आपको 1 नंबर देके छोड़ दिया है, समझ रहे हैं जी। तो मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले तो ये डेल्टा न्यू डेल्टा लैम्डा बाई सी स्क्वायर कैसे आएगा, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएट करके निकाल लीजिए। फिर डेल्टा न्यू क्या होता है, डेल्टा न्यू क्या होता है जीमन इफेक्ट में EV by 4 pi MC होता है, that is called Raman shift in centimeter inverse. This is Raman shift. Substitute get the answer. अब पहले पार्ट में क्या करना था, एक पेज में लिखना था मैक्सिमम 1.5 पेज में। डिराइव मैंने जीवन इफेक्ट नहीं पूछा है, मैंने पूछा है व्हाट लर्न दिस। आप मुझे पहले बताएंगे कि आपका नाम क्या है। Will you tell me what is learn this predictive factor or you will tell me what is जीवन इफेक्ट। मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप आपका नाम बता रहे हैं अपने, आप समझ रहे क्या कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि लैंड आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज लैंड दिस स्प्लिटिंग फैक्टर, एंड यू आर टेलिंग मी माय फादर्स नेम इज दिस। मैं आपको क्या समझूंगा, आप मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन इफेक्ट नहीं पूछा बच्चा, जीवन इफेक्ट नहीं पूछा मैंने, कहीं आगे पूछा हुआ जीवन या नहीं पूछा मैंने जीवन इफेक्ट। मैंने पूछा लैंड दिस स्प्लिटिंग फैक्टर क्या है, या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं। लैंड दिस स्प्लिटिंग फैक्टर क्या होता है, वो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू जे अपॉन जे और अपॉन ई बाई 2m जो होता है, दैट इज लैंड दिस स्प्लिटिंग फैक्टर। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो में लैंड दिस स्प्लिटिंग फैक्टर आता है आपको, so to define what is length this और ultimately उसके बाद ये भी लिखना what is the Zeeman effect, normal Zeeman effect how many components line is split, 2 or 3, 2 in longitudinal, 3 in transverse. Normal Zeeman effect means S is 0, where spin is 0 then it is called normal Zeeman effect, and if it is transverse viewing then it is split into 3 components. If it is normal if it is longitudinal viewing then it is split into 2 components. More than 3 split occurs due to whom? Lagrange splitting factor. So different components, when a line is broken into more than 3 components, it occurs in fine structure, it occurs due to Lagrange splitting factor. There are many other consequences of Lagrange splitting factor. न्यूक्लियर फिजिक्स में भी Lagrange splitting factor की वजह से आपकी न्यूक्लियस की डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल्स इज आल्सो रिमूव्ड. In fine structure also degeneracy is removed. Even आप ESR में भी Lagrange splitting factor आता है. अभी तो G तो निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन के लिए experimentally G for electron is predicted by ESR. So all those things are the consequences of Lagrange splitting factor. अब आपको derive करना है Lagrange splitting factor, कुछ नहीं करना है. म्यू जे के बाद में ये देखो इसमें इंट्रोड्यूस होता है E by 2m. जी जे यही चीज है ना, न्यू जे के बाद में आता है. न्यू जे क्या है हमारा, न्यू जे कुछ नहीं है, न्यू डॉट जे जे यही करना है आपको, ये लिख दीजिए. इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 1 प्लस लीजिए और लीजिए आ जाएगा 1 प्लस जे plus 1 plus s in terms of quantum numbers minus l plus 1 upon 2j plus. अब राइट कर दीजिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन. But लेकिन here I was expecting 2 things which I added extra. What is Lagrange splitting factor definition and what are the consequences of that. डेरिवेशन सबका सही है और इस डेरिवेशन में मैं डायग्राम एक्सपेक्ट करता हूँ भैया. मैं इसमें ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ ये जे है, ये जे प्रोसेस कर रहा है, ये आपका म्यूजे है, ये एस है, ये एस है आपका, ये म्यू एस है और आपका ये एल है, ये म्यू एल है. ऐसे सारे आपको सारे सबको प्रोसेस कराएंगे ऐसे आपको और आप डायग्राम आल्सो आई एक्सपेक्ट. समझ रहे हैं? आई एक्सपेक्ट एल इज प्रोसेसिंग, एस इज प्रोसेसिंग, दे फॉर्म ए आर एन एस कंबाइन एंड दे फॉर्म जे प्रोसेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बी गिविंग राइज टू दिस इक्वेशन. डायग्राम भी बनाना है आपको. इसके 2 डेरिवेशन हो सकते हैं, एनालिटिकल डेरिवेशन ये बताया, दूसरा आप एंगल बना के बता सकते हैं. दोनों तरह से आप कैसे भी कर दिया आपने, एडी वही होगा ना गुड. बट आउट ऑफ 6.5 marks I expected 1 mark for definition in the beginning and 1 mark in the last part for giving me the importance or significance of Lagrange splitting factor. Within 1.5 days that answer would have been done. Correct?
भाई देख लीजिए, बता दिया मैंने, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। B part. B part. What do you understand by fine structure? What do you understand by fine structure? Fine structure means due to spin and due to relativistic correction, lines, whatever the lines I was getting in the Bohr's model, they are split into, they are observed to is basically made up of, comprised of many lines, several lines. For example, H alpha line is made up of 7 different lines. In sodium P2S there are 2 lines, that is called fine structure. Instead of from some n level to some n level transition results into certain lines, but apart from those lines there are many other lines are observed whenever observed under the high resolving power instruments. High resolving power spectrometers, when we analyze the spectra of various atoms, we observe various lines. That is called fine structure in general. So you have to define that in fine structure. For example, H alpha line आप दे सकते हैं, theta lines are split into 7. Sodium's D1 and D2 lines, they are also consequence of fine structure. All single electron atoms exhibit fine structure. All single electron atoms, that is alkali metal spectra, so fine structure. इतने एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको. That is what is fine structure, has to be written along with the examples so that it becomes clearer to me what is fine structure. 5 marks. एक फाइन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने 15 में से 20 नंबर के क्वेश्चन में से 5 marks I have assigned. What is fine structure? You require one paragraph to be defined for fine structure and elaborate by examples. Elaboration means by citing examples 1, 2, 3, the way I have talked. Correct? That is what is fine structure part. Next part. Explain the fine structure of hydrogen atom, taking an example of H alpha lines and explain their observed pattern. Observed pattern of H alpha lines comprise of 7 lines. 5 नहीं, 7 lines. 5 are accounted by spin orbit interaction, 2 are accounted by लैम्प शिफ्ट. तो आपको लैम्प शिफ्ट डालनी ही डालनी है. अगर आप लैम्प शिफ्ट नहीं डाल रहे हैं इसमें, इसका मतलब यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज ऑब्जर्व्ड पैटर्न. कईयों ने सिर्फ 5 लाइनें बना के दिखाई है मुझे. 5 लाइन्स. 5 लाइन्स इज करेक्ट फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फाइन स्ट्रक्चर, बट नॉट फॉर ऑब्जर्व्ड पैटर्न. माई क्वेश्चन इज ऑब्जर्व्ड पैटर्न. ऑब्जर्व्ड पैटर्न इज हाउ मेनी लाइन्स? 7. And for 7 lines, lamp shift has to be taken into account. So you have to write me H alpha line 10 नंबर का बनाया हुआ है मैंने क्वेश्चन. 10 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन पूछता हूँ. I have asked here H alpha lines basically fine structure of H alpha lines taking lamp shift into account. That question I will calculated. अब fine structure कितने मार्क्स का बचा? हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर कितने मार्क्स का दिया? 5 या 6 नंबर का दिया होगा, 7 नंबर का दिया होगा मैक्सिमम. उसमें आपको क्या लिखना है? एक पेज लिखना है. फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन. उसकी 2-3 लाइनें लिख दीजिए. फाइनली फार्मूला लिख दीजिए जो अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था. पहले में से रिलेटिविस्टिक करेक्शन लिखा था. कंप्लीट लिख दीजिए. 5.84 upon n cube 1 upon j plus half minus 3/4n सेंटीमीटर इनवर्स. भाई साहब, I do not expect derivation. I do not expect derivation because 1 and 1.5 page you have to do for fine structure of H alpha lines. आपको सिलेक्शन रूल लिखना पड़ेगा. डेल्टा L is plus minus 1, डेल्टा J 0 plus minus 1, डेल्टा S is 0. Good. Fine structure of H alpha lines. Then you have to write down the lamp shift because P half level and S half levels are not same. They are degenerate and that degeneracy is removed due to experimental evidence of lamp shift. लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? ये सब लिखने में 1.5 पेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको 1 पेज इसमें गया तो आपको फाइन स्ट्रक्चर लिखने के लिए कितना जगह है? सिर्फ 1 पेज है आपके पास. 1 सवा पेज है मैक्सिमम. 1 पेज में आपको दोनों हाईलाइट करने हैं, फार्मूला लिखना है, फाइन स्ट्रक्चर का वाई बताना. वाई फाइन स्ट्रक्चर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है? व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विद मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज केप्ट इन द इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस्ड डू टू ऑर्बिटल थिंग्स, डीजनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल इज लिफ्टेड. डायग्राम बना के लिख देना है आपको. ये सब लिख दिया है.
I've given you marks. नहीं लिखा है, accordingly आप लिखते हैं. Good. Marking is clear. Marking is clear. 5 marks for fine structure. 5 marks for definition of fine structure. 5 marks for elaboration of fine structure. Means writing down spin orbit coupling and that thing. 10 marks for this. 10 marks for hydrogen atom. Fine structure of hydrogen atom taking them into account. I have split the question into 10 marks for fine structure. 10 marks for hydrogen atom H alpha lines. ये H alpha line आपने बढ़िया लिखा है, 6.5 नंबर दिए मैंने. आपने फाइन स्ट्रक्चर बढ़िया लिखा है, 6.5 नंबर दिए आपको मैंने. 13 मार्क्स आई हैव गिवन. यू हैव लैक समथिंग, आई हैव गिवन 12.5 मार्क्स और 12 मार्क्स और लैकिंग है. 10 से कम लिखा है, भाई साहब कंटेंट में वापस लैकिंग है. दैट्स इट. समझ में आ गया नहीं? बी पार्ट दोनों 20-20 मार्क के क्वेश्चन हो गए. सी पार्ट, व्हाट विल हैपन to energy level of an unpaired electron when subjected to external magnetic field. Find the condition of electron spin. 5 marks. 5 marks for first part. 5 marks for the second part. 5 marks for the first part. That means what will happen? 5 marks. What will happen for condition of electron spin resonance? One page answer. In one page you have to answer me both the things. 5 marks for what will happen? क्या होगा? Electron having spin is having magnetic moment kept in the external field. What will happen? What will happen? अरे torque will act यार. Torque will act. That torque will lead to precession. तो precession का वही आंसर हो गया. पहले what will happen? What will happen? Torque will act. Nu s cross b. And due to torque, it will start प्रोसेसिंग. वाई पकड़ लिया, फिजिक्स पकड़ रहा है. फिजिक्स पकड़ रहा है यहाँ पर. फिजिक्स है वाई. टॉर्क एक्ट कर रहा है. टॉर्क की वजह से वो प्रोसेस कर रहा है. तो प्रोसेसन आंसर है इसका. लेकिन वो क्यों है? वो टॉर्क की वजह से. दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. फिर उसके डायग्राम बता सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें. स्पिन के हर जगह ये जीमैन इफेक्ट में भी यही होता है. इलेक्ट्रॉन स्पिन में भी यही होता है. क्या जी? न्यूक्लियर एनएमआर में भी यही होता है कि नहीं होता है? वहां न्यूक्लियस प्रोसेस करने लग जाती है. या इलेक्ट्रॉन का पूछा, इलेक्ट्रॉन के दो ही केसेस हैं. आपको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा ऐसे, इसमें तो सिर्फ एक्सटर्नल पूछा. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या हो सकता है आपको? जीमन एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट है ना. जीमन हो सकता है और आपका ईएसआर हो सकता है. ठीक है भैया. एग्जाम्पल भी बता दिया, प्रिंसिपल भी बता दिया. दैट इज व्हाट इज फॉर योर 5 मार्क्स. टॉर्क विल एक्ट, टॉर्क विल लीड टू इट्स प्रेसिशन. डायग्राम बना दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगा के. जे का इसका न्यू है, न्यू एस. एस के प्रेसिशन डायग्राम बना दीजिए. एस जेड इज एम एस एस क्रॉस. ये गाइस पे एस जेड इज एम एस क्रॉस. करेक्ट. नाउ ESR क्या है? Now degeneracy of the due to this precision, degeneracy of the energy level is removed. तो पहले लिखा था तो degeneracy of the energy level is removed. Now it is split into 2. Finally ये mu s, ये 2 mu b भी होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस mu b भी होगा. और this 2 mu b भी mu कहाँ से आया? माइक्रोवेव सोर्स से आ गया. डायग्राम बना दो इसमें. और ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन डायग्राम बना दो. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड क्या लिख लो आप. ESR का प्रिंसिपल आपको मालूम है. थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. 10 मार्क्स. आई हैव गिवन यू 6.5 मार्क्स. इट इज करेक्ट. अदरवाइज आई व्हाटएवर इट वाज a simple standard derivation question. If you have lacked something, I have given you 5 marks or less than that. Very simple question. Question 3. What is the mechanism of production of double lines? Inelastic scattering between photon and molecule. What is the mechanism of production of double lines? एक लाइन में आंसर. बोल रही पहले मुंह बोलते ही सही बात बता दो मुझे. जैसे ही मैं पढ़ूं, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो mechanism is inelastic collision between
incident light, that is photon, stream of photons, and a molecule. If it is in ground state, then Stokes lines. If it is in excited state, it is एंटी स्टोक्स लाइन. अब डायग्राम बना के प्रूव कर दो. ये आंसर है 3 लाइन का. इसका डायग्राम बना के एलेबोरेट कर दो. आई विल गिव यू 3 मार्क्स. करेक्ट. इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्यों होती है? ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी. ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ये भी लिख दोगे. इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इलिप्सॉइड, पोलराइजेबिलिटी, इलिप्सॉइड चेंजिंग, ये सब लिख दोगे. आई विल गिव यू 3.5. गुड. समझ रहे हैं क्या? वैल्यू एडिशन करा दिया. With polarizability ellipsoid that changes due to which this energy levels are shifted. I will give you half mark extra. Why लिख दिया? ये फिजिक्स है. इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्यों हो रही है? उसका भी कुछ कारण लिख दो. लिख सकते हो. ठीक है. गुड. इनइलास्टिक स्कैटरिंग. नेक्स्ट पार्ट आप 5 मार्क का था. Why first lines occur at separation of 6b, other lines at 4b? Now because it occurs, पहले ही बता दिया, it occurs due to change of polarizability ellipsoid. For polarizability change, there is a selection rule. Quantum mechanics gives you quantum mechanical calculation yields. समझ रहे हैं? जस्टिफिकेशन दे रहा हूं. Quantum mechanical due to polarizability. Physics is polarizability change, induced dipole moment, polarizability ellipsoid is changing, due to which quantum mechanics yields selection rule. Delta J is 0 plus minus 2. Yeah. मैंने जस्ट वाई बताया. वाई पोलराइजेबिलिटी चेंज, दैट सिलेक्शन रूल इज डेल्टा जे इज 0 प्लस माइनस 2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लस माइनस 2. लिख दीजिए अब जे प्लस 2. नाउ न्यू रमन्स इज न्यू 0 प्लस माइनस अब जे प्लस 2 माइनस एफ जे. आपका सीधे आ जाएगा प्लस माइनस 4 बी जे प्लस 3/2. सिलेक्शन रूल्स हैं आपके. चलिए और भी देख. इसके बाद लिखोगे जी न्यू आई प्लस माइनस 4 भी, इससे कम ही चलेगा. प्लस माइनस 6 भी, प्लस माइनस 10 भी, सो ऑन सो फोर्थ. आप बना देंगे डायग्राम को. आप डायग्राम को बना देंगे. ये 6 बी पे हैं. अरे गलती किया क्या नाम? 6 बी के बाद 10 बी. जल्दी 14 बी. ये न्यू आइडिया सब वेब नंबर का टर्म लिखा जाता है. ठीक है. क्लियर. रमन 9 देखना. जैसे मैंने बता दिया आपको. why it is regarded complementary to इसको स्पेक्ट्रा 5 मार्क्स. 20 नंबर का क्वेश्चन है. 5 मार्क्स फॉर मैकेनिज्म, 5 मार्क्स फॉर सेपरेशन, 5 मार्क्स फॉर why it is regarded complementary to IR स्पेक्ट्रा. 1 2 3 टेबल बनाइए. IR क्यों होता है? Why IR? Due to permanent dipole moment. This occurs due to polarizability or induced dipole moment. Good. This is inelastic scattering. वो क्या होता है आपका? वो लिख दीजिए उसका. Then what kind of frequencies are observed there? What kind of frequencies are observed there? All those things you write. Comparative study 3 point at least in tabular form. IR and why they are complementary? Complementary means the molecules which do not give IR spectra, they can give Raman spectra. Raman active bands are there. अब एक आध का एग्जाम्पल बता दो. डिफरेंट थिंग्स. Raman active bands, Raman inactive bands. H2O, CO2 किसी का मॉलिक्यूल का लेके आपको. Having center of symmetry will not have permanent electric dipole moment, so they will not give you IR spectra. Only Raman will be obtained of them. Good. तो 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहने के लिए. कम से कम 3-4 पॉइंट. अगर आपने 3 पॉइंट लिख के तो 2.5 नंबर दिया है. अगर आपने 4 पॉइंट डायग्राम बनाया है तो मैंने आपको 3 नंबर दिए हैं. 3.5 मार्क्स. दैट्स इट. गुड. 5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है. ये भैया एंटी स्टोक्स लाइन्स आएगी. दूसरी वाली लाइन आएगी. इसमें उसका लैम्डा जो आएगा, लैम्डा के टर्म में दिया है. आंसर भी लैम्डा के टर्म में लिखना है. 4 1 6 7 एंड स्टार्स. ये आंसर है. I have given everything in terms of lambda. Convert that into wave numbers. Get the Raman shift.
and this line will be higher side of that thing, higher wave number, तो wave number आ जाएगा उसका 1 by कर दीजिए, that you will get the this lambda will turn out to be answer is 4167. ये आंसर सही है, 3 नंबर दिए हैं. Definitely it will be less intense at normal temperature, but whenever the temperature is increased, its intensity will also change. Good. That is what I expected in this question. 20 mark question. I have given up to 13 marks. Clear? I have given up to 13 marks for this question. Answer was 4167. Anti-Stokes lines. क्वेश्चन 3 है. क्वेश्चन 3 भी प्योर थ्योरी है. क्या करना है, 3 पेज तक दे दिया. 3 पेजेज would have written so that vibration rotation spectra of diatomic molecules have so bands degraded at one side only. Vibration rotation spectra one side degraded only because in vibration rotation whenever we analyze the potential energy curve, every excited state internuclear separation is increased. R dash is greater than R double dash, leading to B dash is less than B double dash, but this difference is not appreciable. डायग्राम लिख लीजिए, इसको बना लीजिए आराम से. That is why I get only radiodegraded bands. Or in the electronic spectra, everything can happen. R dash can be R dash equal to R dash can be less than R dash can be greater than R double dash. All kind of situations can happen in the electronic spectra. Therefore, I will get band degraded at both ends. ये लिखना है, ये आंसर था इसका. Also explain vibration rotation spectra show poor tendency towards information. क्यों? फिर अब आपको इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी है आपको. Basically, this is for 10, 12 mark, 15 mark question. You have to give me the whole calculations. You have to calculate R band. You have to calculate the P branch, R branch lines, P branch lines. 3 लाइन की वेव नंबर कैलकुलेट करनी है आपको. पूरी लाइन बनानी है, स्पेक्ट्रा बनाना है R ब्रांच और P ब्रांच का, और पैराबोला, फोल्डेड पैराबोला बनाना है. और आपको दिखाना है कि इंक्रीज है हेड फॉर्मेशन मींस लाइंस आर बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. दैट डायग्राम यू हैव टू शो मी एंड अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन द मार्क्स. कंप्लीट थ्योरी you can read Manuel for this purpose. Whatever the diagram Manuel has made, I am expecting that kind of diagram for 13 mark answer. Whosoever has done that, many of you have done that, I have given you marks. Question number C part. ठीक है जी, यही का क्वेश्चन है, बता दिया मैंने. 3C, क्वेश्चन 3C. भैया fundamental molecule HCl found to have a fundamental vibration. fundamental vibration कब होता है? V equal to 0 to V equal to 1. fundamental vibration. वेव नंबर दे दिया इसका ओमेगा ई दे दिया मैंने आपको. वो क्या होता है? 1/2 पाई सी रूट के बाय न्यू होता है. यही होता है कि नहीं होता जी? 1/2 पाई सी रूट के बाय न्यू. दैट आई हैव गिवन यू. वेट नहीं, इससे के निकालना है आपको. तो लेट मी द के. इससे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू ओमेगा ई स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट क्रॉस चेक. Here K will turn out to be पहला पार्ट है K 480.5 Newton meter inverse or Newton per meter. This is the value of K. First part. सही लिख दिया, 3 नंबर दे दिए. गुड. अब दूसरा उसने मैंने उसी में बात पूछा. Its internuclear changes R minus RE is some distance I have given 0.05 नैनोमीटर. इसी को x बोल देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? आप kx स्क्वायर r minus r0 होल स्क्वायर डेल्टा u इज हाफ k r minus r0 होल स्क्वायर. पोटेंशियल इज ऑलवेज चेंज. पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, ऑलवेज इट इज चेंज. डेल्टा u लिख दिया आपके, डाल दीजिए भाई. k आ गया, r minus r0 आपको दिया हुआ है. क्या जी? फार्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम था. 6 × 10⁻⁻19 जूल आएगा. जूल
गुड, ईवी में बदल लीजिए, 1.6 से डिवाइड कीजिए तो कट गया, ये आ जाएगा आपको करीबन 3.76 ईवी, 3.76 ईवी। गुड, सही है, 6 नंबर ले लीजिए। 6 मार्क्स गलत है, न्यूमेरिकल है, फार्मूला सही लिखा है, 1 नंबर ले लिया आपने। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन 3 तक? अप टू क्वेश्चन 3 एनी क्वेश्चन? अप टू क्वेश्चन 3 एनी क्वेश्चन? Whosoever has taken the test, whosoever has taken the test, they have got the question paper with you. I have discussed up to question number 3. If the answer is correct, I have given you 6 marks. Answer is nicely written without any, with very neat and clean. I have given 6.5 marks within 1 page. और 1 पेज से ज्यादा कोई महाभारत लिख रहा है, मैं कभी भी 6 से ज्यादा नहीं दूंगा। 1 पेज से ज्यादा में आप कुछ भी लिख रहे हो, 10 मार्क का जगह ही नहीं देगा यूपीएससी। 10 मार्क के क्वेश्चन में यूपीएससी जगह ही नहीं देगा आपको 1 पेज से ज्यादा की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4A। 4A, draw the Zeeman pattern. Draw the Zeeman pattern of 2p 3/2 2 ऐसा, इसका Zeeman pattern बनाना है और क्या करना है? And calculate their separation in centimeter square। कितने मार्क का क्वेश्चन है? क्वेश्चन कितने मार्क का है? 15 मार्क्स का भैया। Draw the pattern 10 marks। Separation pattern, सेपरेशन कितनी जगह? कितनी जगह? 2 पेजेस। समझ रहे भैया? आपने ये नहीं लिखा, सेपरेशन कैलकुलेट करके नहीं दिया। कितने नंबर का चेक कर रहा हूं आपका क्वेश्चन में? 10 मार्क्स। ध्यान रखना, आपने कैलकुलेशन सेपरेशन नहीं लिख के दिया, मुझे सारे कंपोनेंट का सेपरेशन लिखना भी बता रहा हूं आपको धीरे से। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया, 15 मार्क क्वेश्चन, 15 mark question, 2 pages space, and pinpointedly draw the pattern, Zeeman pattern. It is anomalous. Yes है, 2s plus 1 is 2, that is ऐसे था, is single electron atom. क्या जी? ये anomalous pattern होगा, anomalous Zeeman pattern होगा इसका। स्पिन 0 नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ क्यों? 2s plus 1 was 2, प्रूव करके दिखाया। 2s plus 1 is 2, this is half. What kind of pattern? Anomalous Zeeman pattern, correct? अब G लिखो देख से, we know G is 1 plus J, J plus 1 plus S, S plus 1 minus L, L plus 1 upon 2J, J plus 1। 2p 3/2 का G कितना? करने की जरूरत है क्या? 4/3 सबको याद है? 2s आपका G कितना? 2। इसके बाद त्रिज्या का मामला लिखो। Zeeman pattern occurs due to, अब 2 लाइन लिखो। Zeeman पूछ रहा है, Zeeman patterns occurs due to LS coupling holding good। Zeeman pattern occurs due to weak magnetic field, due to weak magnetic field and due to LS coupling holding good। डायग्राम बना लीजिए। अब सीधे ये फार्मूला है, ये मास्टर फार्मूला, E is mu BB GJ MJ, ये E का फार्मूला है। डिराइव नहीं करना है, डिराइव नहीं करना है। एंड ट्रांजिशंस विल बी ऑब्टेन्ड, ट्रांजिशंस कम ड्यू टू डेल्टा MJ 0 plus minus 1। Transition comes due to delta MJ is 0 plus minus 1। Transverse viewing, longitudinal viewing only plus minus। यही है ना? ये सब तेरी लिख दी थी, ये सब लिख दिया मैंने। इसके बाद सीधे लाइन बनाओ यार, लाइन बनाओ। 6 लाइनें बनानी है। कितनी लाइन बना के दिखानी है आपको? 6 लाइन्स नहीं, क्या कंपोनेंट्स? 6 कंपोनेंट्स। डेल्टा MJ 0 2 कंपोनेंट्स, डेल्टा MJ plus 1 2 कंपोनेंट्स, डेल्टा MJ minus 1 2 कंपोनेंट्स, और हर एक कंपोनेंट के ऊपर लिख दो GJ MJ। क्या लिखोगे जी? Do I need to make a diagram? Everybody can make it।
correct standard है. So you write delta Gj, you write Gj Mj. Now you calculate Gj Mj because try to understand. अब मैं लिख रहा हूँ 5 मार्क का दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, वो किसने गलत लिखा है, उसको बहुतों ने गलत लिखा है. Delta E will be what? Lines are coming corresponding to delta E. Components are obtained corresponding to delta E. Wave number will be delta E by SC. Frequency will be delta E by H. And delta E itself is a consequence of mu BB delta GJ MJ. अकेले MJ नहीं, GJ MJ. Every level GJ is separate. तो GJ MJ निकाल लीजिए, हर एक का अलग-अलग लिख दीजिए. Z से लिख जाएगा आपको 6 lines. This all 6 components are right. 6 components. Correct? You calculate it. I will give you 3 marks. 3 इसमें दूंगा आपको, वो पहले वाले 15 मार्क्स में से आपको मैं दूंगा, और 10 मार्क्स में से आपको मैं 6 दे दूंगा. 6 and 3 9 marks. I have given up to 9 marks for 2 pages. I have given up to 9 marks. You have not done something, marks are left. And out question भाई साहब 11 बार एग्जाम पूछा गया. आउट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन. सोडियम D1 and D2 लाइंस, या D2 पूछा है, इसी तरीके से D1 की 4 D1 लाइन इज स्प्लिट इनटू 4 कंपोनेंट्स. एग्जैक्टली सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक. 2p हाफ एंड 2s हाफ. 2p हाफ का जी कितना होता है बताओ? 2/3. 2/3 ना, 2/3 करेक्ट. याद करके जाओ, वहां इतना कैलकुलेट करने का टाइम ना, सिर्फ फॉर्मूला लिख के वैल्यू लिख दो. 2p हाफ, ये सब तो स्टैंडर्ड है. Good, easy MJ. Because they ask you, they may ask this time. Draw the given pattern of sodium G1 and D2 lines. And then बढ़िया डायग्राम बनाओ. Finally ये जो वाला बनता है, ये वाला भी बनाना है, ये वाला भी बनना है. ये दो, ये ट्रांसवर्स व्यू को जब करोगे, ये 2 लाइन ऐसे आएंगी, 2 ये आएंगी आपको. ये पाई है, और ये सब क्या है? सिग्मा. ये डेल्टा MJ 0 है, ये डेल्टा MJ आपका ±1. ये ट्रांसवर्स व्यू है. लॉन्गिट्यूडनल व्यू में ओनली आई विल गेट ±1. गुड, दैट्स इट. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट 4B कितने नंबर का है? 10 मार्क्स. स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रेंड कोऑर्डिनेट मेथड 5 मार्क्स. स्टेट एंड एक्सप्लेन. Two rules. All lines should start from turning points. Ground state they start from the middle of the level. Why? That is the second. First is internuclear separation remains constant because electron takes much faster in jumping. Nuclei are not able to adjust themselves. That is why all transitions in the electronic level change should be represented by internuclear separation remaining constant. जस्टिफिकेशन के साथ बना दिया, डायग्राम बना के दिखा दो. आप बता रहे हैं उसी बात इसमें. And इसमें 1 energy level diagram of to make at least R dash is equal to R double dash, R dash is greater than R double dash. एक तो डायग्राम बनाओ मुझे, then I will give you the marks with the energy level condition. What are its consequences? Intensity prediction. What do we predict? Most favorable transitions. Most favorable transition means maximum probability transition. Maximum probability means maximum intensity. जितनी ज़्यादा transition होगा उतनी ज़्यादा intensity होगी. So they give you the most intense transitions in the emission spectra as well as in absorption spectra. That is one prediction. Second prediction, how much spreading of the molecule. वो भी तो निकलता है ना. By the coordinate parabola, I can find out how much is the maximum extension or compression according to the molecule. Correct? That thing you can predict. और भी कुछ लिख सकते हो तो और भी कुछ लिख दो. ये सब लिखा है आपने कोंडोन बड़ा बना के. I will give you 3 marks. I expect 1.5 marks page answer for this. I have been lenient. I have expected 1.5 page. 10 mark question. The next part, that is also 10 marks. Is it possible to H2, HF and all those things? 5 number का है जी. H2, HF 5 number का है. Simply HF and NO will give you the rotational spectra because they have permanent electric dipole moment. Homonuclear diatomic molecule do not have permanent electric dipole moment. 5 में से 3 दे दिया जी. 5 में से 3 marks आपको मैंने दे दिया सिर्फ लिखने के लिए.
नेक्स्ट पार्ट, CO मॉलिक्यूल J इक्वल टू 0 टू J इक्वल टू 1, क्या होता है Bj प्लस 1 माइनस एनर्जी डॉट Bjj प्लस 1, तो 2Bj प्लस 1 होती है एनर्जी, क्या आ जाएगा 2B, यही तो है ना, यह J प्लस 1 माइनस Fj, क्या आ जाएगा Fj न्यू आ जाएगा आपको 2B J प्लस 1, दैट मीन्स 2B, सिंपली 2B, ये 2B कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ऐसे 4 पाई स्क्वायर आई स्टैंडर्ड है, कोई चीज नहीं मानना, आई टर्न्स आउट टू बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्न्स आउट टू बी का, ये ऐसे कौन ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई, न्यू ये ऐसे कौन एक आपका न्यू ऐसे कौन 4 पाई स्क्वायर आई, एवरीथिंग गिवन टू यू, कैलकुलेट आई टर्न्स आउट टू, सबका करेक्ट है, ऑलमोस्ट एवरी वेरी करेक्ट, 1.46 into 10 raised to power minus 46 kg meter square. 5 मार्क का 3 मार्क्स न्यूमेरिकल में दे दिए, 3 मार्क्स पहले वाले पार्ट में दे दिए, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैव गिवन 6 मार्क्स, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी unless you have seen it wrong. Good. Now general impression, this is the question where nothing extra can be added other than microwave spectra, rotational spectra, या microwave spectra. कुछ किसी ने लिख दिया, otherwise it's very general kind of thing. हाफ मार्क आई वेटेड ओनली डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव आंसर्ड द अदर क्वेश्चंस। अभी तक मेरा दिमाग बन चुका है, जहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन डेवलप किए, आई हैव ऑलरेडी मेड अप माय माइंड कि आपको 6 एंड हाफ देना है या 6 देना है या 5 देना। अगर आपको मैंने पहले के 10 क्वेश्चनों में 6 एंड हाफ दिया है, यहाँ पर भी 6 एंड हाफ दूंगा, अदरवाइज आपको 6 नंबर दिया। समझ रहे कि दिमाग बन गया है एग्जामिनर का। चौथे क्वेश्चन आते आते एग्जामिनर ने आपको प्रेस कर रखा है कि आप कहाँ पर हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ कम भी लिखेंगे ना, तो आपको मैं 6.5 दूंगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ आपको? मैंने दिमाग बना लिया है। अब आपको मैंने क्लासीफाई कर रखा है 6.5 वाला स्टूडेंट 6.5 और 6, देयर इज नो डिफरेंस इन द आंसर नाउ। Even if you are not making any difference in the answer, then also I can make the difference of half mark. That is the leverage of first 5-6 questions written so nicely. B part. C part. C तो था ना, B C दोनों कर दिया। D part क्या है? Another 15 mark question. What is the mechanism of fluorescence and phosphorescence spectra? 5 marks. Write down any 3 differences between them. 5 marks. Any 3 differences between whom? Fluorescence and phosphorescence. And another 5 marks. How do they differ from Raman spectra? मतलब 2 टेबल चाहिए मुझे। एक टेबल चाहिए फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, अदर टेबल आई रिक्वायर फॉर Raman spectra. Fluorescence, phosphorescence compared to Raman spectra. Good. And people have made 5 points. 5 point, 4 point, 5 point लिखे हैं, then I have given you 3 marks. 3 marks each. What is fluorescence and phosphorescence? Delayed emission is called phosphorescence. As soon as whenever the light of one frequency, suitable frequency, absorption frequency falls on a molecule, that photon is absorbed and no new photon is emitted. New photon is emitted. That is called, that is spontaneous emission. कैसा है? Spontaneous emission. That is your fluorescence, spontaneous emission. Typically it is of the same frequency or lower frequency. Good, but same intensity as the exciting radiation. ये सब है. Phosphorescence क्या है? Delayed है. Delta S is equal to 0 is obeyed. Delta S is equal to 0 is violated. Good, instantaneous emission, delayed emission. Good. और फिर क्या है? और क्या अंतर है? ऐसे कई सारे डिफरेंट एग्जांपल दे दो तुम लोगों को। फ्लोरोसेंट वगैरह, फ्लोरोसेंट लाइट वगैरह, सो मेनी थिंग्स। फास्फोरेसेंस, सो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फ्लोरोसेंट एंड फास्फोरेसेंस। पहला तो बताया मैंने आपको, स्पॉन्टेनियस एंड डिलेड। सिलेक्शन रूल भी अलाउड, सिलेक्शन रूल भी वायलेटेड। थर्ड मेन डिफरेंस, सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट। समझ रहे हैं जी? दे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं 3। उसके बाद भूल जाओ तो भूल जाओ। सिंगल मल्टीप्लिसिटी स्टेट, सेम स्टेट कुछ मतलब मल्टीप्लिसिटी डजंट चेंज, फ्लोरोसेंस मल्टीप्लिसिटी चेंजेस, फास्फोरेसेंस। एज ए consequence selection rule is also violated. Selection rule is this. Good.
ये तीन डिफरेंस थे फ्लोरोसेंस एंड रमन में क्या है मैकेनिज्म रमन इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग हियर इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एब्जॉर्प्शन spontaneous emission same photon is scattered different new photon is scattered correct then intensity weak lines also Raman ka intensity can be weak lines here intensity is same so there are basic differences between Raman and these things yes only to 9 marks 3 marks each for everything good question number 4 clear question number 4 clear to everybody जैसे कुछ पूछना है you can ask क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब जिनको कम नंबर दिया आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस बताया मैंने 3 नंबर के लिए 3 मार्क्स एंड सेट ए क्वांटिफिकेशन 3 मार्क्स 3 डिफरेंस बाकी कुछ एक्स्ट्रा लिख दोगे तो ज्यादा सही होगा अदरवाइज बट 3 व्हाटएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग यू हैव नॉट रिटन इवन दैट आई हैव नॉट गिवन यू द मार्क्स सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सरल है यार कुछ नहीं है अब इसको 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ मैंने कहा था 11:30 तक खत्म कर दूंगा डिस्कशन को 11:30 क्वेश्चन 5 I have given 5 lines in a line the line in rotational spectra of HCl molecules appears at 83.5 सेंटीमीटर इनवर्स ये भी याद रखो रोटेशन 100 के अंदर का ही होता है रोटेशन की लाइन है 100 के अंदर की ही होती है विद इन 100 इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव है 83.5 सेंटीमीटर इनवर्स then your 104.1 सेंटीमीटर इनवर्स 124.7 सेंटीमीटर इनवर्स 145.4 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 166 सेंटीमीटर क्या अंतर है इनके बीच का क्या डिफरेंस है डिफरेंस क्या बता दो इस कैलकुलेटर को बताओ जो भी देखोगे 2b जो आएगा लाइन के बीच का लाइन क्या होता है ये लाइन रोटेशन स्पेक्ट्रा की लाइन के बीच का क्या डिफरेंस होता है 2b होता है ना विजिट रोटेटर एज्यूमिंग मॉलिक्यूल इज ए HCl molecule assuming it is a rigid rotator then what is the difference 2b बहुत heavy molecule होता है तब distortion coefficient आता है 2b minus 4d and other things what 4d whatever that comes when the molecule is very heavy correct but here simply 2b सब uniform gap है देखो try to understand gap is nearly uniform try to understand cross check 20.6 आ जाएगा सबका gap ले लो ये 20.6 है एवरेज ले लोगे 20.6.25 आ जाएगा सब में 20.6 है करके देख लो सबका डिफरेंस गुड दैट मींस इट इज ए रिजिड इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल आई हैव नॉट आस्क्ड बट यू कैन कमेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड एज ए रिजिड रोटेटर करेक्ट सो दिस इज दिस 2b आ गया सो सिंपल 2b इज 20.625 और 20.6 सेंटीमीटर इनवर्स देख करके देख लीजिए ना 2b b आ यानी 20 हो गया काम अब मुझे क्या पूछ रहा हूँ fj क्या होता है bj j प्लस f4 पूछा है 20b हो गया नहीं 2b लिखा 10 गुना कर दूं इससे अरे वो मूल जवानी आंसर है यार इसका किसी का मिस्टेक होना था क्या आंसर में किसी का मिस्टेक होना था जिसका मिस्टेक होना है उसको दिमाग ही नहीं चालू थे 2b 20.6 है मैंने डेलिबरेटली 20b पूछ रखा है 10 टाइम्स इसको करना है 206 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर इज करेक्ट आई हैव गिवन 5 मार्क्स 5.5 मार्क्स करेक्ट नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल यू हैव कमेंटेड आई हैव गिवन हाफ मार्क एक्स्ट्रा इसको ईवी में कन्वर्ट कर दिया किसी ने वो भी मार्क्स दे दिया मैंने ईवी में कन्वर्ट किया 2.56 10 raised to power minus 3 देखो रोटेशनल लेवल यही होती है रोटेशनल लेवल यही होती है यही है किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर दिया नो प्रॉब्लम आई क्रॉस चेक दैट इज हाउ आई हैव गिवन यू 6 and a half marks कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है बी पार्ट also sorry
Question B part. Write down the configuration of carbon. Z is equal to 6. क्या जी 1s2 2s2 क्या जी 2p2 यही है ना जी. Excited state is 2p2. Equivalent electrons. Both of them are equivalent electrons. NL. Why equivalent electrons? Because for both the electrons N and L are same. Now if the Pauli exclusion principle has to be hold good for LS coupled state. For LS coupled state, correct? For LS coupled state, Pauli exclusion principle has to hold good. So both the electrons would have different. Justification बता रहा हूँ. Both the electrons would have different ML and MS states. For which देखो S तो होगा S1 plus S2. 0 and 1 दो ही चीजें होंगी. S is equal to 0. EMS is plus half and minus half. No problem. EMS is plus half and minus half will give you S is equal to 0. But whenever S is equal to 1, then both the electrons are having EMS. Same. S is equal to 1. EMS is half for both. Both. Correct. All the three quantum numbers have been same. Now ML has to be different. EML has to be different. देखो L1 is 1, L2 is 1, L could have been 0, 1, 2. अब देखो पैरिटी के हिसाब से S is equal to 1 के साथ L is equal to 1 will go and with S is equal to 0 I will go L is equal to 0 and 2. S is equal to 0 I will go L is equal to 0 and 2. L means yes, 2 means D. सिंगलेट टर्म में 1s0 1d2 ये हो गया जी. अब S is equal to 1 L is equal to 1 में क्या लिया आपको? S is equal to 1 L is equal to 1 क्या हो गया P और 3p0 1 2 ये टर्म्स है. गुड. 5 मार्क्स. कितने मार्क्स? 15 मार्क्स क्वेश्चन. 5 marks for p2 electrons, 5 marks for excited state. What is this excited state? इसका एक्साइट क्या होगा? 2p के बाद क्या होगा? 3s. तो अब हो गया एक्साइटेड स्टेट 2p 3s. In 2p 3s there will be LS coupling. In 2p 3s there will be LS coupling. L1 is चलिए समझ लीजिए पहले वाले के लिए. N1 is 2, L1 is 1, S1 is half. N2 is 3, N2 is your 0, S2 is half. L क्या हो गया? L1 plus L2 सिर्फ 1. बताइए L is only 1. चाहे 1 minus 0 करूं चाहे 1 plus 0 करूं. L1 minus L2 to L1 plus L2. There is only one L. L is equal to, that means there will be only p terms, nothing else. करेक्ट है कि नहीं? बहुतों ने गलत लिखा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. भाई साहब प्रफुल्ल गोरडिया समझ लीजिए इसको. यू हैव रिटन रॉन्ग. L1 is 1, L2 is 0, L vector is L1 plus L2. Value will vary from L1 minus L2 to L1 plus L2. L value is only 1 p terms. और S क्या हो सकता है? S could be 0 and 1. एक बार S को 0 मिलेगा सिंगलेट हो जाएगा. 1p1 S को ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 3p 0. गुड. आंसर इज क्लियर. 3 मार्क्स. 1p1 3p0 1 2. किताब में देख लो जाके, यही आंसर लिखा हुआ है. अगर आंसर करेक्ट है 3 more marks. 3 plus 3 marks for equivalent electrons, 3 marks for excited state, 6 marks. करेक्ट. अब क्या पूछा है? अगला क्या पूछा है? जो आपने आंसर नहीं किया है, अगला क्या पूछा उसने? Draw the transitions. Correct. Transitions comes correspond to LS coupling. All terms are arising due to LS coupling. LS coupling selection rules will come. Delta L is 0 plus minus 1. Delta S is 0. Delta J is 0 plus minus 1. 8 transitions आएंगे. कितने आएंगे जी? 8 lines you will get. 8 lines. बुक में देख लो, राजकुमार की किताब में सॉल्व प्रॉब्लम दिया है.
राजकुमार की किताब का सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, 6 लाइंस बनी है, सॉरी 8 लाइंस। अगर आपने 8 लाइंस ड्रॉ करी है तो मैंने आपको कितने दिए बात में से 3 मार्क्स। अदरवाइज आई इवैल्यूएटेड यू फॉर इफ यू हैव डन ओनली इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आई गिवन यू 3 मार्क्स। If you have done both these terms I give you 6 marks. None of you have tried to draw me the transitions, and for transitions you have to explain me the selection rules. I have not given you the marks. Such a scientific explanation for 9 marks out of 15 marks, and 9 marks according to what? Normalization factor. यूनिवर्सिटी में जांच रहा होता तो 5 में 5 दे देता, 15 में 15 दे सकता था, would have given you 15 out of 15. यहाँ पर चूंकि नॉर्मलाइजेशन है, that is how I am giving you 3, 3, 3. 3 parts are there in the question. That is how the marks have been assigned. Such a scientific subject is physics. Whether I am evaluating or with these guidelines you are evaluating, does it make any difference? भैया ये सही है, अगर ये नंबर टर्म इसमें ये तो नहीं कि हाफ ट्रूथ होगा कि मैं एक एस भी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा और नंबर दे दूंगा। हाफ ट्रूथ हो सकता है क्या फिजिक्स में? हाफ ट्रूथ हो सकता है क्या फिजिक्स में? हाफ ट्रूथ है, इसका मतलब आपने सिद्धांत गलत है, आपका प्रिंसिपल आपने गलत लगाया है। समझ रहे हैं भाई साहब? समझ रहे हैं? प्रिंसिपल आई हैव अंडरस्टूड यू डू नॉट नो एनीथिंग इन एलएस कपलिंग। समझ रहे हैं जी? आई हैव अंडरस्टूड दैट यू डू नॉट नो बेसिक्स ऑफ एलएस कपलिंग। समझ रहे हैं? तो इसमें बहसबाजी का कोई स्कोप नहीं है। अगर आंसर या तो करेक्ट है या आंसर रॉन्ग है। देयर इज ओनली क्लियर थिंग्स एंड दैट आल्सो गिव्स मी दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। वंस यू डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं बाकी जगह भी कृपा बरसा रहा हूं आपको। अगर उसी तरीके का दूसरा कोई वैसे पूछा है, मैं आपके ऊपर क्या कर रहा हूं? कृपा में मैंने ज्यादा नंबर दे दिया। मैं तो सोचा था करेक्ट और भी कम कर दूं, किया नहीं मैंने, किया नहीं। देखिए भैया, मैं जब तक आपको 125 से नीचे आ रहा है, 100 से नीचे आ रहा है, मैं बहुत लीनियंट हूं। आप मान के चलो कि मैं बहुत ही लीनियंट हूं। जब आपका 125 के ऊपर आता है तब मैं एक बार देखता हूं कहीं ज्यादा तो नहीं दे जाने आपको 125 प्लस। अदरवाइज बिलो 125 आई एम वेरी लीनियंट। मार्क्स देता हूं खुल के, ये मैं सोच रहा हूं खुल के मार्क्स देता हूं। Then our C part. C part is another 15 marker. C part is another 15 marker. Find the most populated rotational level of molecule at temperature 600 Kelvin. C part. देखो भैया, राजकुमार जी की किताब में और हर जगह ये फार्मूला लिखा हुआ है, KT/2HBc minus half. मैं इसका जस्टिफिकेशन मांगूंगा। आई विल डेफिनेटली, बिकॉज़ इट 15 मार्क क्वेश्चन, आई विल एक्सपेक्ट इट्स जस्टिफिकेशन, बट फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट विल फेच यू 8 मार्क्स। दैट आंसर मस्ट बी करेक्ट। 7.5 आंसर करेक्ट है तो 7.5 दूंगा, उसके बाद रिवर्स देखूंगा कि कैलकुलेशन सही है क्या आपकी, इसका जस्टिफिकेशन है क्या। ये फार्मूला लिख के आपने आंसर 4 निकाल दिया है। आंसर इज 4, आंसर आर दिस इज 4, आंसर इज 4। आंसर आपने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है आपके यूनिट। अब इसका जस्टिफिकेशन, एनर्जी लेवल क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी लेवल क्या होती है? EJ is 2J plus 1 E raised to power minus BJJ plus 1 upon KT। ये सॉरी 2BJ plus, ठीक है क्या? 2J plus 1 BJ E raised to power minus delta E 2BJ plus 1। ये नहीं है, गलत है। 2JJ plus 1 BJJ plus 1 ये एनर्जी का फॉर्मूला 2J plus 1, दिस इज योर डिजेनरेसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस इज द एनर्जी नहीं है, NJ है, NJ सर, NJ ये NJ फॉर्मूला ना आप टू मैक्सिमाइज यही है ना। DNJ by temperature dt, यही करना है, डिफरेंशिएट, you will get this
डिराइव करके दिया है मुझे किसी ने 15 मार्क के क्वेश्चन में यू कुड हैव वेरी वेल डिराइव दिस इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 9 marks I expect you to start from this population at any rotational level is given by Maxwell Boltzmann statistics proportional to degeneracy factor proportional to this is Maxwell Boltzmann statistics good now maximize this सो भी इसका डायग्राम दिखाओ ऐसे ऐसे करके जो दिखाता है वो जाके यहाँ पे 4-5 लेवल पे मैक्सिमम होती है पॉपुलेशन किताब में बनाया हुआ है एंड देन get this formula and so be this I given 9 marks I expected here you could have derived for 9 marks for 7.5 to 8 marks you couldn't have derived direct formula you would have given for 8 marks no problem because it was 15 mark question I have given you 2 pages space you could have very well written with the justification on those things कैलकुलेशन बीच में कुछ छोड़ भी देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस बिगिनिंग में क्लियर होना चाहिए था नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट कैलकुलेट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिटिंग फॉर n इक्वल टू 2 l इक्वल टू भैया इसमें कुछ नहीं करना डायरेक्ट फार्मूला लगाना 5.84 Z4 n2 n plus 1 centimeter inverse that is spin orbit coupling term the very same way I have told you relativistic correction 1 by j plus half minus d by 4n exactly same way spin orbit correction term is 5.84 Z4 n2 l plus 1 this is the formula for spin orbit coupling given in the book ये सही लिखो कैलकुलेट कर लो आंसर इज पॉइंट this level equal to 1 L equal to 1 now L equal to 0.365 centimeter square and 4. देखो फाइन एक्सपेक्टेड टेंडेंसी पॉइंट -5 लिखा हुआ है गुड आंसर इज करेक्ट मार्क्स आर बीन गिवन देखिए 12 बस 12:15 पे खत्म कर दिया हमने 12:15 पे खत्म कर दिया 11:45 आई स्टार्टेड एट 10 o'clock 10 बजे स्टार्ट किया था आदि किया था कि नहीं किया था किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सबकी कॉपियां रख गई हैं आई विल बेटेड आंसर शीट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन I have evaluated the answer sheets of everybody whosoever has been enrolled. Their answer sheets will be sent. I have discussed the entire paper within 1.5 hours. We started at 10:15, completed at 11:45. I have answered almost all questions within that thing. And a complete answer, if I had to write, I would have written the answer within 2 hours. लगता है आपको लिख सकता हूँ 2 घंटे में पूरा पेपर में बिना कट्टस पिट्टस के नीट एंड क्लीन में लिख सकता हूँ आज भी लिख सकता हूँ 30 साल पहले भी लिख सकता था ये और बताऊंगा मैं आज ही आज तो तुम कह दोगे कि सर 130 दफे पढ़ा चुके हो लेकिन जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था तभी मैं ऐसे ही लिखता था तभी मैं ऐसे ही लिख सकता था और आज भी जिनको नंबर आ रहा है 14-15 लोग जो हैं वो नीट एंड क्लीन ही लिख रहे हैं दे आर राइटिंग नीट एंड क्लीन 40-45 people are doing the test 40-50 people are doing well 1/3 सही है कि अच्छा सब्जेक्ट है कि नहीं बताओ गुड सब्जेक्ट 1/3 people 250 मार्क्स की तो फाइट ही नहीं है discussion is closed